for the 5 minutes, we are working on meditation technique, and this technique will truly help you to translate any sentence from Hindi to English confidently. So everyone, are you ready? Yes. Really? Yes. Now just close your eyes. Everyone, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें. Come on, close your eyes, sit straight. Straight बैठेंगे, झुककर नहीं बैठेंगे. झुककर बैठने से आलसी आती है. Everyone, close your eyes. Yes. मैं जो भी पूछूंगा उसको बहुत ही धीरे धीरे बोलना है, बिल्कुल भी रेस नहीं है, आराम से बोलना है, जल्दबाजी नहीं करना है. ओके, मैं क्लास में हूं. आई एम इन क्लास. मैं इंग्लिश सीख रहा हूं. आई एम लर्निंग इंग्लिश. मुझे जाने दो. लेट मी गो. मैं यहां आना चाहता हूं. मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं. क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? Do you know everything about me? जी हाँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं. Yes, I know everything about you. सोचो और बोलो. अगर आप बिना सोचे बोलेंगे तो आप गलती करेंगे. If you speak without thinking, you will make mistake. लेकिन यदि आप सोचकर बोलेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे. But if you speak by thinking, you will not make mistake. You will not make mistake. स्टेज पर आओ. रवि को यहां बुलाओ. कॉल रवि हियर. रवि यहां नहीं आ रहा है. रवि यहां आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ रहा है. रवि wants to come here but he is not coming here. सोचो और बोलो. ध्यान से बोलो. स्पीक केयरफुली. ध्यान से सुनो. लिसन केयरफुली. मुझे सुनना पसंद है. मुझे बोलना पसंद है. क्या आप बोलते हो? क्या आप समझते हो? क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझते हो? क्या आप समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड? क्या मुझे समझना चाहिए? शुड आई अंडरस्टैंड? क्या वह आपका भाई है? हाँ, वह मेरा भाई है. Yes, he is my brother. वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा दोस्त है. He is not my brother, he is my friend. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. वह मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. He is my friend, but I don't know anything about him. यदि वो आपका दोस्त है तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. If he is your friend, so you should know everything about him. मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है. I don't like to watch movies. मुझे वेब सीरीज देखना पसंद नहीं है. I don't like to watch web series. मुझे न्यूज देखना पसंद है. I like to watch news. क्या आप रोज न्यूज देखते हैं? Do you watch news daily? जी हाँ, मैं रोज न्यूज देखता हूं. मुझे इंटरनेशनल न्यूज में बहुत इंटरेस्ट है. I have a great interest. जब आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप कहते हैं I have a great interest. बोलो. I have a great interest in international news. I have a great interest in international news. क्या आप वहां जाएंगी? क्या आपको वहां जाना पसंद है? क्या आपको यहां आना पसंद है? यहां आइए. स्टेज पर आइए. दूसरों की मदद कीजिए. हमें दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए. We must help others. Now you can open your eyes and just feel relaxed for a while and see your sentence making process. The brain, you know what? जिसको कि आप अभी आंखें बंद करके ट्रांसलेट कर रहे थे आप सभी, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अब ऐसा फील कर रहे होंगे कि इंग्लिश इज रियली वेरी इजी. Am I right or wrong? Yes. It's very easy when you prepare your brain to speak it. If you do it for 10 minutes every day, I guarantee you within 15-20 days you will have a remarkable results. For 10 minutes only by sitting anywhere, just keep asking to yourself, मैं घर पर हूँ, I'm at home, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, I want to learn English, मुझे जाने दो, let me go. कुछ भी जो आपके ब्रेन में यहाँ पर जो सेंटेंस आ रहा है उसको आप इंग्लिश में बोलें. If you are unable to translate it from Hindi to English, just note it down that sentence in your copy and ask us in the class. कि सर ये मैंने बनाने की कोशिश करी, मुझसे बना नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे.
You got it? Practice for 10 minutes every day and see the remarkable changes. Listen, we speak English with the brain, and if we train our brain, then we can communicate with anyone. So this is the training part actually. In the training part, you have to ask some sentence to your brain for 10 minutes every day, and this process, if you are repeating for 10 to 15 and 20 days simultaneously, then you will find a remarkable results. You got it, everyone? Yes, sir. Second, you will be able to concentrate very well. आप देखना इतनी देर आंखें बंद करने के बाद में आपकी लिसनिंग सबकी बढ़ गई है, पता है? आप एकदम अलर्ट मोड में आ गए हो। अगर मैं आपको कुछ भी आप समझाऊंगा ना, तो वो आपको पूरा A to Z समझ में आएगा, राइट? A to Z. Why? बिकॉज आप पूरी तरह से फोकस्ड हो गए हो। आप देखो ना, जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने वालों का डिसीजन जो है वो डिसीजन मेकिंग सही करता है, क्योंकि उनका दिमाग जो है सही एक जगह ठिकाने पर होता है। आप देखो जो रश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है ना, गिर पड़ते हैं, कहीं भी चलते चलते गिर जाते हैं, तो किस वजह से? क्योंकि उनका ब्रेन एक जगह स्टेबल नहीं होता है। कभी मन इधर दौड़ जाता है, कभी माइंड उधर दौड़ जाता है, कभी मन करता है वहाँ चला जाओ, कभी करूँ ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ। सो वी डोंट हैव अ स्टेबल ब्रेन. So the same concept apply in the learning. While learning, when you stable your brain, while learning, when you make yourself stable on a particular place, then you don't make mistake. And this strategy is called the true learning strategy. You got it? आपको एक अच्छा example देता हूँ. In ancient time, when the Gurukul used to be in the past, so बच्चों को पढ़ाने से पहले, before teaching them, the teachers used to allow them to do meditation. और जब बच्चा करीब 1 घंटे 1.5 घंटे मेडिटेशन कर लेता था ना, तो उसके अंदर का जो चंचल स्वभाव है, जो उसके अंदर का बचपना है, वो बचपना मैच्योरिटी में तब्दील हो जाता था. मतलब वो बच्चे को जब संस्कृत के भारी भारी श्लोक, जिनको सुनने के बाद में अच्छों को नींद आ जाए, वो श्लोक भी वो बच्चा क्या करता था पता है? समझ लेता था, क्योंकि उसको समझाने से पहले 1 घंटे क्या करवाया? मेडिटेशन करवाया. तो उसने अपने ब्रेन के ऊपर पूरा क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया. अब उसका ब्रेन जो है उसके हाथ में है. उसको कैसे डांस करवाना, उसको ब्रेन को कैसे मूव करवाना है. ब्रेन को अगर भूख लग रही है तो भी भूख का एहसास नहीं होने देना है, आलसी आ रही है तो भी उसका एहसास नहीं होने देना है, और एक एक्टिव लिसनर की तरह एक एक चीज पर फोकस कर रहा है. Are you getting everyone? Yes. तो ये था कमाल मेडिटेशन. बट आज के समय में क्या है? वी डोंट डू दिस थिंग्स. ये हम करते नहीं है. वी शुड डू दिस. और ये जो चीजें हैं, दीज आर द थिंग्स दैट कैन मेक यू अ शार्प लर्नर. चलिए सो करते हैं शुरू. और मैं जो सेंटेंस पूछूंगा ना, वो आपको बनाने होंगे. बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं. बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं. Speak as I am speaking. मुझे कोई बताएगा यहाँ कंजंक्शन कौन सी लगाई मैंने? ये आपकी कंजंक्शन है. सुनो और बोलो. Come on. सुनो और बोलो. Listen and speak. कोई बताएगा यहाँ कौन सी कंजंक्शन है? एंड कंजंक्शन है. वहां मत जाओ क्योंकि वहां एक भूत है. Don't go there because there is a ghost. बताओ यहां पर कौन सी प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन है ही नहीं है. प्रीपोजिशन. कंजंक्शन क्या है? बिकॉज इज कंजंक्शन. ओके, मैं वहां जाना चाहता हूं. मैं वहां जाऊंगा. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है. मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है. मैं पढ़ाई करना चाहता हूं. मैं पढ़ाई कर सकता हूं. तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों गए? तुम वहां कैसे गए? तुम वहां कब गए? क्या तुम यहाँ आते हो? क्या तुम यहाँ आओगे? क्या तुम यहाँ आ सकते हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ाओगे? क्या तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आर यू? क्या तुम बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या तुम बोलोगे? क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? मैं वहां नहीं जाऊंगा. मैं तैयार हूं.
मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप कहां हो? क्या आप सुन रहे हो? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू? मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। I don't want to speak because I have no information about it.